हेलो, आज हम घूमेंगे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को। यहाँ 2 क्यूआर कोड लगे हैं, एक एंड्रॉयड यूज़र के लिए और दूसरा आईओएस यूज़र के लिए। अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रगति मैदान के भीतर जाएंगे, जहाँ पर लोगों को हॉल नंबर तक ले जाने के लिए फ्री राइड है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉल नंबर 6 में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आप अगर बच्चों के साथ आए हैं तो सबसे पहले आप हॉल नंबर 6 में जाएं, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नहीं आने दिया। बच्चों को दे सकते खेलने के लिए और इधर चला दो तो कैंडी बन जाता है। अच्छा 150 का आएगा। ABCD वाला ब्लॉक्स ये आपको 190 का मिलेगा। 259 का है, 190 का लेंगे, 150 का लग जाएगा। आप अगर यहाँ पर जब भी आएँ तो सारी चीज़ों को मोल भाव करके ही खरीदें। कुछ शानदार सेल्फी पॉइंट्स हैं बच्चों के लिए। आप यहाँ पर आकर शानदार सेल्फी बच्चों के लिए ले सकते हैं। यह बच्चों के लिए मंच बनाया गया है, जहाँ पर बेहद छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे अपनी किताबें लिख चुके हैं, जो मंच पर अपनी किताबों के बारे में बता रहे हैं, या कोई भी बच्चा आकर यहाँ पर अपनी बातें शेयर कर सकता है। अभी मंच पर कुछ बातें चल भी रही हैं और साथ में यहाँ पर लोग अपनी ड्राइंग, क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, अपनी विश लिख रहे हैं।
तो अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पर बोर हो रहा है तो इन एक्टिविटीज़ को कर कर वो मनोरंजन कर सकता है। So, you know, one thing that we do see today a lot is when we are writing, right? Being published and writing. आप मंच पर देख सकते हैं very different thing. And when you're thinking of getting छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी बुक्स के बारे में पीछे से बता रहे हैं, आवाज़ आ रही है उनकी। it's right when you're about to take that ये सब क्राफ्ट के काम हैं। can be very mortifying as well, right? ये देख सकते हैं आप मंच पर बच्चे बात कर रहे हैं अपनी बुक्स के बारे में। ये जितने भी बच्चे हैं Authors can be very सिर्फ होस्ट को छोड़ के जिनके हाथ पे माइक है वो होस्ट कर रही हैं अभी, और वो भी काफ़ी कम उम्र की हैं, और ये सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ किताबें लिखी हैं। So do you have आगे आपको इनमें से एक का इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे। might be struggling with that thought? So the best advice is not to take sarcasm, criticism like negatively. You should like embrace the views you're getting, and do not worry what others think about your story. It's mainly like what you love doing. It's your passion. That's why you're writing. So whenever you are like, what am I going to do? So mainly think what is the reason you're writing. Most people, the reason they're writing is because they love it. It's their passion. So think about that reason, and you'll forget about the people who like making negative comments to people. So not prioritizing any negative feedback in your head right off the bat, even before you get it, because you have to remind yourself why you've taken up this project in the first place and why you're interested in putting it out there, is because you have a passion for it. So that's a really good advice. I want to advise our audience on how to deal with the dreadful thought of putting themselves out there. I prefer to think that if they're not there, they're already a published author, you're writing a series, you left a cliffhanger. So then think of the comments like other readers giving feedback. So your next book or your next draft can be better. Okay, yes, Rudranshi, and then we'll take up Medhavi and Ezra and Dilbansh in that order. You shouldn't, really take the negative feedback too hard. In the workshop also, I remember I was really shocked that I had to, read out what I had written for everybody to hear. But then you slowly get used to it once you get in the game, and then everybody's reading it out, and it's fun, And I had much fun doing it. So hard work was a constant in all of our writers' journeys. I remember even in your mentor's feedback report, it was mentioned that ये बच्चे अपनी किताबें लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Mariam, आप कितने साल की हैं 11. और अपनी बुक्स के नेम बताइए आप। Whispers of Wonder, The Summer of Thoughts, and I have 6 books actually. So My Friend's My Joy, A Hobby is Your Friend, The Book of Ilathar. ओके, आपको कौन से राइटर जो है मोटिवेट करे कि आपको किताबें लिखनी चाहिए? My favorite author is Ruskin Bond. I Okay. extremely love his stories because they are extremely holly and jolly and make the world a happier place. ओके, आप मिली भी उनसे? But I really wanted to have. ओके, My father has actually. ओके, कम। I had the privilege of staying with Ruskin Bond Okay. for a full 2 days. लैंडोवर? We were organizing a literature and a film festival. So Okay. in the literature festival, Ruskin Bond Sahab was also there. So I had the opportunity and the privilege of escorting right from the airport till the time we dropped him back to the airport. So I was his complete escort. So उनके साथ जितने भी थी, तो she has grown up listening to those stories and stuff. And she has the complete collection of Ruskin Bond. So she really loves him. तो बच्चे थोड़ा सा रील में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किताबों में कम, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? Okay,
So, main thing with shorts and reels is you don't realize how many you are watching so quickly. You'll say 5 minutes and you can go 5 hours without noticing. So I would feel as in like in reels you already know what you're like watching. Like when you're watching it, like you know what you're hearing, what you're watching, what you're seeing, what everything. But whenever you're reading something, you have the like if you see on television or in a reel a beautiful flower, it shows you a beautiful flower, you're like that's the only beautiful flower. But when you read something called a beautiful flower, so many different imaginations come to your mind thinking what's a beautiful flower. थैंक यू सो मच फॉर टाइम, आपने अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीटी ने भी बच्चों के लिए शानदार बुक स्टॉल बनाया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। एनबीटी की एक ख़ास बात है, एक तो ये सरकारी फंडेड होता है, तो थोड़ा सा इसमें किताबें सस्ती मिलती हैं, आप ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं एक बार किताबें की कुछ काम। यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए किताबें हैं, बच्चों के लिए हैं। आप सेगमेंट, यहाँ बच्चे पिकनिक मना रहे हैं। और सबसे शानदार बात, जब हम बचपन में होते हैं तो पिकनिक का एक अलग मज़ा होता है। इस समय प्रगति मैदान पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है, आप यहाँ पर आके यह बेहद शानदार चीज़ें देख सकते हैं, इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं और शानदार तस्वीरें खिंचा सकते हैं। इन बच्चों वाले हॉल में आके आपको अपना बचपना याद आएगा, मासूमियत याद आएगी और एक सुनहरा अवसर मिलेगा अपने पुराने दिनों में लौट जाने का और उन्हें एंजॉय करने का। आप यहाँ ज़रूर आएँ हॉल नंबर 6 में। ये हॉल नंबर 6 ये प्रगति मैदान का फूड कोर्ट है, यहाँ पर आके आप खाना एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ मैंने हॉल नंबर की तस्वीरें लगा दी हैं। आपको किसी खास प्रकाशन में जाना हो, किसी खास हॉल में जाना हो या जानकारी चाहिए हो, तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि आपको किस प्रकाशन में, किस हॉल नंबर में जाना है, जिससे आपको आसानी हो सकती। ये मैप है जिसके ज़रिए आप पूरे प्रगति मैदान में घूम सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दादागिरी मत तुम्हारी सारी पहचान है। पहले कोई
इस प्रकाशन ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जिसको इन्होंने बाहर इस तरीके से लोगों के लिए लगाया है। मेरी जो कहानी है वो एक रिपोर्ट के इर्द गिर्द बनी हुई कहानी है, लेकिन उसमें परिदृश्य जो है वो उस समय काल का है जब स्वतंत्रता संग्राम से हम सब जूझ रहे थे। और उस दौरान बनारस की कोठी से लेकर कोठी यह सिर्फ दिखाने के लिए हैं, अभी काम नहीं करते हैं। यह रूस के ही राइटर हैं जो अभी कविता पाठ कर रहे हैं। आपको थोड़ी हंसी आएगी, ये वैसे फर्रे पर कविता कह रहे हैं। फर्रे यानी कि जो एग्ज़ाम में कई बच्चों के काम तो आते ही हैं। बुरी बात है लेकिन फर्रे को जानते सब हैं। ये उसी पर कविता कर रहे हैं। Для живописца подземных высот. Люди, спасенные дедом Маклаем, стали в грязи. यहाँ आप इस तरीके से कंप्यूटराइज पिक्चर खिंचवा सकते हैं, यानी कि आपकी तस्वीर खींची जाएगी और उसके बाद इस तरीके से क्रिस ड्रेसअप में आप दिखने लगेंगे। ये सऊदी अरब जो इस बार साझेदारी निभा रहा है न्यू दिल्ली बुक फेयर में, उसमें वो एक चाय पिला रहे हैं या काढ़ा पिला रहे हैं। जो इन्हें मीठा समझ के पीना चाह रहे हैं वो ना पिएं, क्योंकि थोड़ा कड़वा इसका टेस्ट है। कितना लगाव दिखा है लोगों का इन किताबों के प्रति। लोग किस तरीके से किताबों की अहमियत को आज भी कम नहीं आंकते हैं। किताबें हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, चीज़ें को आसान बनाने में सहायता करती है। इसी शिद्दत के साथ इसलिए लोग आज भी किताबों पर अपना भरोसा जताते हैं। आप ज़रूर प्रगति मैदान में आएं और इस बुक फेयर में अपनी पसंदीदा किताबें चुनें और चीज़ें सीखें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ क्या है खास। धन्यवाद। और शानदार किताबें इन दोस्तों से भी आप खरीद सकते हैं। कोई भी किताब आपको पसंद आए तो ये भारी डिस्काउंट देते हैं और आप इन्हें खरीद सकते हैं।
यह प्रगति मैदान के एंटर करते वक्त ही आपको दिखेंगे और आप इनकी किताबें खरीद सकते हैं। थैंक यू।